Hello friends, today we learn the lesson My Body. My body means this is our hands, fingers, thumbs, toe, knee, elbow, hands, head, nose, ear, lips, teeth, tongue. Here is also lungs and hearts, a neck. This is part of our body. All the parts are together, they make our body. Like as a motor, the motor has wheel, steering, body is पूरी body and engine. They are make a motor. This type here, but body is a like as a machine. हमारी body भी क्या machine है. Then I learn about an external part of our body. Which part we call the external part? Which part of our body we can see directly and observe it? It is called external part. So what is internal part? This part we can see not directly. It is called internal part. And sense of organs, we can feel these things. For example, our skin, eyes, nose, ears, they are sense of organs. Like for example, we can smell easily, see easily, listen easily, tongue, the taste easily. This type, the sense of organs. Now you see, identify the parts of our parts and color them. ये तुम्हारा क्या है? What is this? Ear. This is leg, and this is hand. You fill up the colors in your body. Next you can say here. Human body is like a big machine. Our body like as a big and strong machine. For example, like machine is a work with the help its different part. Our body जो बनी है उससे डिफरेंट पार्ट से बनी, नॉट अ वन पर्टिकुलर पार्ट. हेड है, ब्रेन उसके अंदर है, टीथ, टंग, ए बॉडी, स्टमक, लेग, हैंड. दिस इज अवर ह्यूमन बॉडी पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी. डिफरेंट पार्ट ऑफ अवर बॉडी परफॉर्म द डिफरेंट फंक्शंस. फॉर एग्जांपल, व्हाट डू द वर्क ऑफ द हैंड्स? हैंड्स का वर्क कौन सा है? तो दे आर रिटर्न, कैचिंग द थिंग्स एंड गैदरिंग एनी अदर थिंग्स. सो इट इज वन. दिस पार्ट्स आर टू टाइप्स. जैसे हमारी बॉडी के जो फंक्शन है वो टू टाइप्स के हैं. व्हाट आर टू टाइप्स? एक्सटर्नल एंड इंटरनल. एक्सटर्नल पार्ट्स वी external part of our body. First we are learn the external part of our body. The body parts which can be say called external part of our body. Means जो पार्ट है हमारी बॉडी के we can see directly. उसके लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती देखने के लिए, उसे कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट. फॉर एग्जाम्पल, दिस इज द हैंड्स. यू कैन सी डायरेक्टली. इट इज अवर एक्सटर्नल पार्ट. नोज, आईज, फॉरहेड, head, it is called external part. For example, we all have the head. हम सबको head है. Neck, गर्दन है वो. Two hands है. And two legs, और दो लेग है हमारे. These all are external part of our body. वो सारे हमारे क्या है? External part है. Our head consists two eyes. हमारे head के अंदर two eyes है. 2 ears, दो ईयर है. one nose है. and one mouth, एक मोटा है, मुंह है. our head rests on necks. हमारी गर्दन पे आके कौन बैठा है? our head है. which is called. our mouth has 2 legs. मुंह है उसके 2 legs है. and tongue, and अंदर एक टंग है. there are many teeth in our mouth, और उसके अंदर बहुत सारे टीथ हैं. Now you have know how many teeth in your body, means in your mouth. So you have, many students have 28, many 30 and 32. Everybody have 32.
teeth is generally. We have two hands. How many hands we have? Two hands. There are four fingers. Four fingers है. And a thumb each hands. एक one hands को four finger है और एक one thumb है, means total five है. We have two legs. हमें कितने legs है? Two legs है. Each leg has a thigh, means between that part it is called thigh. Knee and foot, जो लास्ट में जो पार्ट है वो फुट है और जो एंड होता है लेग्स वहाँ है वो नी है. There are thigh toys of each foot. एक लेग को thigh toys है उसके. आगे देखते हैं तो बता रहे हैं. यहाँ तुम देख रहे हो कि हमने अभी भी जो बताया उसके बारे में यहाँ स्टेटमेंट में लिखा है ट्रू है या फॉल्स है. तो टीथ हेल्प अस टू च्यू आवर फूड. तुम खाना कैसे खाते हो? हाउ टू ईट द फूड? च्यूइंग. हम ऐसे करके खाना खाते हैं, उसे कहते हैं च्यूइंग. तो दिस सेंटेंस इज राइट. आवर माउथ हैज इज नॉट एक्सटर्नल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हम अपना मुंह डायरेक्टली देख सकते हैं, इसीलिए वो एक्सटर्नल है. इसने कहा है कि वो एक्सटर्नल पार्ट नहीं है, तो वो रॉन्ग है सेंटेंस. आवर माउथ हैज टू लिप्स एंड अ टंग. हमारे माउथ को यहाँ टू लिप्स है और वन टंग है, इट ट्रू है. ईच लेग इन आवर बॉडी हैज आई, नी एंड फुट. हमारी एक वन लेग है, उसी वन लेग में बॉडी में जो लेग है उसमें आई, नी एंड फुट है. हमने अभी ऊपर पढ़ा था, वो क्या है? राइट सेंटेंस है. अभी हम पढ़ रहे इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी. हमने देखा कि इंटरनल पार्ट तो हमारे बहुत सारे, लेकिन हमने सबके बारे में जानते नहीं है. कुछ वैसे है जिसके हमें जानते हैं अच्छी तरह से, वो भी पता है. तो विच पार्ट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स? वी कैन नॉट सी डायरेक्टली. इट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट. वी कैन नॉट सी सम पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स ऐसे हैं जो हम डायरेक्टली देख सकते हैं नहीं. वो इनर साइड है, स्किन के इनर साइड है. दे आर कॉल्ड इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी. उसे कहते हैं बॉडी का क्या कहते हैं? इंटरनल पार्ट कहते हैं. दे वर्क ऑल द टाइम और दे फुल टाइम वर्क करते हैं. फॉर एग्जाम्पल हमारी हार्ट बीटिंग है, वो तो बारे में तुमने सुना होगा. जो हार्ट बीटिंग हमें कभी दिखती नहीं है, फिर फीलिंग होती है. क्या होती है? फीलिंग होती है. उसे कहते हैं कंटिन्यू वर्किंग. जो एवरीडे वो दब 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 उसकी आवाज चलती रहती है. वो फर्स्ट है ब्रेन. ये पार्ट तुम्हें स्क्रीन पे दिखा देता है, वो है ब्रेन. ये जो ब्राउन कलर से दिखता है वो ब्रेन है. द ब्रेन कंट्रोल ऑल आवर बॉडी मूवमेंट्स. हमारी बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते थे, चलना हो, बोलना हो, सुनना हो या देखना हो, वो पूरा कंट्रोल कौन करता है? ब्रेन करता है. इट हेल्प अस टू थिंक. वो क्या करता है? हमें सोचने में भी हेल्प करता है. हम जो सोच रहे हैं वो हैंड से नहीं, ब्रेन से सोचते हैं और ब्रेन से सोच कर करता है. ये तुम्हारी बॉडी का जो हार्ट पार्ट है वो कहाँ होता है? बॉडी में इधर लंच के अंदर साइड में, लेफ्ट साइड में, थोड़ा साइड में होता है, लेफ्ट साइड ही होता है. और उसे तुम हर किसी का जो हार्ट है वो अपने मुक्के के जितने बराबर का होता है, उससे छोटा नहीं होता है. द हार्ट पंप ब्लड अदर पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. जो एक कांस्टेंट चलने वाली है, जो हमें पंप यहाँ की जो दिखती है, तो तुम्हें आवाज सुनाई देती होगी. अपना हैंड से रखो चलो और चेक करो, दिखाई सुनाई देती है. तुम्हारी मिस फीलिंग होती है, तुम्हें वहाँ दब दब जैसी आवाज आती है. तो यस, वो क्या है? हार्ट है. वहाँ पे जहाँ से ये आवाज आती है वो है हार्ट है, वहाँ लंग्स के अंदर चुके हुए. तो वो क्या करता है? बॉडी के सभी पार्ट में दे आर सेंड द ब्लड, मींस पासिंग कर देता है पूरी बॉडी में ब्लड. जहाँ जहाँ जरूरत है वो सभी जगह पे पासिंग करता है. उसके बाद लंग्स. तो ये जो शेप है, जो पिक्चर है, वो पूरा लंग्स का है. और वी कैन टू लंग्स, वी हैव टू लंग्स. हमें कितने लंग्स है? टू है, दो साइड के दो. वैसे है. दे हेल्प अस टू ब्रीथ. वो हमें किस में है? हमें तो ऐसे ब्रीथ तो हम नोज से लेते हैं, लेकिन इनर जो प्रोसेसिंग है वो इनर प्रोसेसिंग ये लंग्स करते हैं और वो हेल्प करते हैं ब्रीथिंग के लिए. जैसे हमें हवा में से कोई ऑक्सीजन अलग करके नहीं लिया है, डायरेक्टली लिया, तो वो अंदर से ऑक्सीजन लेता है और अदर गैसेस दे आर सेंड आउट ऑफ आवर नोज. दिस शेप इज स्टमच. ये जो है वो क्या है? स्टमच है. और स्टमच का जो शेप है वो तुमने देखा है
अभी। तो आवर स्टमच हेल्प अस टू डाइजेस्ट द फूड वी कैन ईट, जो हम खाना खाते हैं वी ईट। आवर स्टमच, जो हमारा जो स्टमच है, जो बेली हम जिस नाम से जानते हैं, वो क्या करता है, हमारा खाया हुआ हम सिर्फ मुंह से चबाते हैं, टीथ का च्यूइंग करके उसे अंदर भेज देते हैं फूड पाइप के जरिए। फ्रेंड्स, हम ये सीख रहे थे कि लर्न कर रहे थे कि आवर स्टमच हेल्प अस डाइजेस्ट द फूड वी ईट। हम जो खाना खाते हैं वो डाइजेस्टिंग के सिस्टम कौन से थे, किसके लिए, तो वो है स्टमच के। अभी हम देख रहेंगे कि बॉन्स, आवर बॉडी कंसिस्ट ऑफ मैनी बॉन्स, हमारी बॉडी में बहुत सारे बॉन्स हैं। दे गिव शेप एंड सपोर्ट आवर बॉडी, वो क्या करते हैं, हमारी बॉडी को शेप एंड सपोर्ट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये उंगली हिलाते हैं तो उसमें भी क्या है, ये जो मसल्स है वो उसकी हेल्प करते हैं, और शेप में भी हर जगह पे वो अंदर बाहर चले जाते हैं। तुम सिर्फ हम तो इस बॉडी के अंदर हर जगह पे, पूरी बॉडी में हर जगह पे वो क्या है, मसल्स है, और मसल के साथ बॉन्स गए हुए हैं। अगर देखते हैं तो मसल्स आर प्रेजेंट, मसल्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर सभी पार्टों में मसल्स है, और मसल्स क्या करता है, शेप हमारी बॉडी में पूरी तरह, और मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दे हेल्प अस टू बॉन्स टू मूव, वो बॉन्ड को हिलाने के लिए फिंगर जैसे हलती है, गर्दन जैसे हलती है, नेक ऐसे हलती है, वैसे किसी भी चीज को हिलाने के लिए, हैंड्स अप एंड डाउन करने के लिए भी वी हैव हेल्प अस टू मसल्स। दे हेल्प अस टू मूव अवर हैंड्स, हमारे हैंड, लेग एंड हेड को भी दे आर हेल्प टू अस, मीन्स बॉन्ड को हेल्प करते हैं वो मूवमेंट के लिए भी। अब अभी हमने देख रहे हैं कि यहाँ take the right internal part of our body and cross the external part of our body, मीन्स तुम्हें देखा है अभी कि हमारी बॉडी के 2 kinds of parts हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स, विच पार्ट वी कैन से डायरेक्टली, जो पार्ट हम सीधा देख सकते हैं, तो वैसा इस पिक्चर में कौन से जो पार्ट है हम डायरेक्टली देख सकते हैं, तो हमें डायरेक्टली देखने मिलते हैं टीथ और हैंड। वो क्या है, एक्सटर्नल पार्ट, दे आर एक्सटर्नल पार्ट। एंड हार्ट एंड स्टमच वी कैन नॉट सी डायरेक्टली, इट इज कॉल्ड इंटरनल पार्ट। यहाँ दोनों जगह पे क्या होगा, राइट ऑप्शन आएगा। अभी देख रहे हैं कि सेंस ऑफ ऑर्गन्स, तो हमें पता है कि सेंस ऑर्गन्स क्या है, तो सेंस ऑर्गन फॉर एग्जांपल के आईज, व्हाट इज द वर्क ऑफ द आईज, सी, नोज इज द वर्क ऑफ दैट स्मेलिंग, या किसी भी चीज तुम रास्ते से जा रहे होते हो और तुम्हें पता चल जाता है तुरंतली कि यहाँ से कुछ बदबू जैसी आ रही है, तो तुम्हारी वो मैसेज कौन देता है, मन। साइकिल की ड्राइविंग कर रहे हो, आगे बम्प आ रहा है, तो तुम्हें डायरेक्टली वो मैसेज आइस देगी और तुम बम्प पे अपनी साइकिल की स्पीड रफ्तार जो है वो स्लो कर दोगे। जाते जाते तुम्हें ऐसा फीलिंग होगा है कि तुम्हें कुछ टच होकर चला गया, बर्ड था या इंसेक्ट था, वो तुम्हें दिखी, तभी तुम्हारी वो फीलिंग करनी पड़ेगी, स्कैन करेगी। रास्ते जाते हो तो तुम्हारा फ्रेंड्स पीछे से बुला रहा है, चिल्ला रहा है, तभी तुम्हें जो आवाज़ सुनाई देती है वो फीलिंग कौन करता है, ये फीलिंग हमारे ईयर करते हैं। और जब तुम किसी चीज़ को खाते हो, वही तो इम्पोर्टेंट है, तो उसके लिए टेस्ट की फीलिंग कौन देता है, वो है टंग। तो इसी तरह से हम वो जो हमारे है वो क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। द स्पेशल ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी दैट टेल अस अबाउट द थिंग्स अराउंड अस आर कॉल्ड सेंस ऑर्गन्स। हमारे आसपास में जो भी चीजें हैं उसके बारे में हमें जो कोई मैसेज देता है और मैसेज देता रहता है, तो वो हमारे क्या है, सेंस ऑर्गन्स है। और उसे सेंस, देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स, हमारी बॉडी में कितने सेंस ऑर्गन्स है, 5 है टोटल। द फर्स्ट आई, सेकंड नोज, थर्ड ईयर एंड टंग फोर्थ, तो 5, विच इज द 5 तो सभी जगह पे पूरी बॉडी पे है, वैसे कौन सा है, तो वो है स्किन। स्किन इज अ ऑल ओवर बॉडी, पूरी बॉडी पे है, वो है 5th नंबर का सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। दे आर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स, विच इज दैट आईज, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन, दे आर 5 सेंस ऑफ ऑर्गन्स है। अभी हम उसके व्हाट द फंक्शन ऑफ द सेंस ऑफ ऑर्गन
तो फंक्शन है वर्क ऑफ ईयर। ईयर का वर्क क्या है? ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड। जो मैं अभी स्पीक कर रहा हूं, यू कैन सी लिसनिंग वेरी इजीली। हु आर लिसनिंग? ऑल आर लिसनिंग। बट तुम किसके जरिए सुन सकते हो? तो वो हमारे ईयर है। तो वो हेल्प हमें करता है। ईयर हेल्प अस टू हियर साउंड। जो आवाज तुम्हें सुनाई देती है वो सभी किसके जरिए सुन सकते हैं? ईयर। तो वो फंक्शन ऑफ ईयर का। अभी तुम बता सकते हो कि आईज हेल्प अस टू सी थिंग्स। जो चीज हम देख रहे हैं उसके हेल्प कौन करता है? तो आईज करती है। फॉर एग्जाम्पल अभी ये क्या है तो तुम आसानी से बता सकते हो। तो दिस इज द पेंसिल। तो ये पेंसिल है तो वो किसने देखा? आईज ने देखा। तो आईज का वर्क क्या है? वो है देखना है। नोज, नोज हेल्प अस टू स्मेल थिंग्स। मैं बताया कि नोज का हमें किसकी हेल्प करता है? सूंघने में। हमारे पास गुलाब का फूल है लेकिन नोज अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो उसकी स्मेल में आती नहीं है। तो इसीलिए ये स्मेल जो अच्छी या बुरी, बदबू है या अच्छी स्मेल है, दोनों की तुम्हें श्योरिटी ये बताता है। तुम्हें स्मेल के काइंड भी यही बता देता है। और टंग सबसे इंपॉर्टेंट मुझे लगती है क्योंकि हम पूरी बॉडी को सबसे ज्यादा टेस्टफुल खाना देते हैं। तो वो कौन बता देता है? टंग। टंग्स हेल्प अस टू टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। टंग्स हमें यही करती है कि डिफरेंट काइंड के जो टेस्ट है, फॉर एग्जाम्पल स्वीट मीठा है, सॉर खट्टा है, तो ऐसी चीजें हम खाना खाते हैं। अभी मौसम चल रहा है मैंगो, तो मैंगो का टेस्ट हमें पसंद कैसे चलेगा कि मैंगो का ही टेस्ट है। तो खाने के बाद वो कौन मैसेज देता है? टंग देता है। तो उसी से हमें पता चलता है, टंग के टेस्ट से हमें पता चलता है कि इसका टेस्ट ऐसा है। तो वो हेल्प करता है हमें टंग। Skin help us to feel hard, soft, rough, hot, cold things. तो ये सभी का तो वन वर्क था लेकिन ये टंग के कुछ ज्यादा फिक्स थे और इसके वर्क तो बहुत सारे हैं। अगर किसी चीज को पकड़े और बता दे कि ये कौन सी है तो हार्ड है, उसकी फीलिंग से भी बता देता है ये पेन है, बिना देखे पता चल जाता है ये टेबल है, ये बोर्ड है, वैसे पता चल जाता है। तो वो हार्ड थिंग्स को भी बता देता है। पानी में हैंड डालो तो वो कैसा है, कोल्ड है या हॉट है, वो भी बता देता है। एटमॉस्फेयर कैसा है तो भी वो बता देती है। स्किन के तो बहुत गर्मी लग रही है, विंटर है, कोल्ड है एटमॉस्फेयर, वो भी स्किन बता देती है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, कोल्ड है। मींस हॉट एंड कोल्ड भी बता देता है। सॉफ्ट, तुम घास में गार्डन में जाते हो तो घास में जैसे ही जाते हो वैसे सो जाते हो, स्लीप कर जाते हो, तो वो क्या है, घास कैसा है, सॉफ्ट है। तो वो भी हमें पता चल जाता है वो सॉफ्ट है। माउंटेन पे जाते हो या वो माउंटेन पे जाने वाले रास्ते पे चलते हो तो यू हैव फीलिंग द वे इज रफ। वे कैसा है, रफ है। मींस ये रफ, हॉट, कोल्ड, हार्ड एंड सॉफ्ट, ये सारा मैसेज हमें कौन देता है, हमारी स्किन जो पूरी बॉडी पे है वो हमारा वही मैसेज देता है। यहाँ कुछ एक्सरसाइज दिए वो अभी हम फिलअप करेंगे। तो यहाँ पिक्चर के जरिए तुम्हें बता देना है कि वो क्या होगा। वो राइट डाउन विद द सेंस ऑर्गन्स इज यूज्ड इन इट्स केसेस। तुम्हें पता है कि मैंने अभी तुम्हें बताया कि हम टेस्ट किससे करते हो, कैसे करते हो। आई टेस्ट एन आइसक्रीम विथ माय, आइसक्रीम का टेस्ट तुम्हें इस मौसम में तो किया नहीं है। क्यों नहीं किया, तो वो तो तुम्हें पता है कि कोरोना की वजह से सभी जगह पे क्या है, जो जितने भी आइसक्रीम वेंडर है वो सभी स्टॉप थे, पूरा मार्केट बंद था, तो वो तो खाना ही नहीं खाया। हाँ, कभी किसी ने घर पे बना के खाया होगा तो पता होगा कि तुमने आइसक्रीम का टेस्ट किससे लिया था, तो वो है आई टेस्ट एन आइसक्रीम विथ माय टंग। तो वो उसका आंसर आएगा, टंग ये रखी जो है वो ही कर रही है। आई हियर द टेलीफोन रिंग विथ माय, ये टेलीफोन की रिंग बनती है तो तुम्हें किससे पता चलता है कि टेलीफोन की रिंग बज रही है या नहीं, तो उसकी आवाज से। तो आवाज तुम्हें कैसे पता चलती है, तो यू हैव लिसनिंग योर ईयर से तुम्हें। तो आई हियर द टेलीफोन रिंग विथ माय ईयर। अभी है आई फील द रफ बार्क ऑफ द ट्री विथ माय, जो पेड़ है तो पेड़ कैसा है, उसके ट्रंक का शेप कैसा है, तो उसके जब हमारे हैंड उस पे ऐसे घुमाते हैं तो तुम्हें पता चल जाता है कि उसका जो ट्रंक, पेड़ का जो ट्रंक है वो कैसा होता है। तो कैसा होता है वो
रफ है, तो उसे क्या चीज से पता चला तुम्हें? स्किन के जरिए। तो आई फील द रफ बार्क ऑफ द ट्री विथ माई स्किन, तो यहाँ स्किन होगा। अभी तुम्हें पता चलेगा। आई सेंस द स्मेल ऑफ द फ्रेशली बार्क्ड केक बेक्ड केक विथ माई, तुम्हारी मम्मी, तुम स्कूल से घर जाते हो तो खाना बनाती है, एक दिन उसने केक बना दी है, तो तुम्हें घर में एंटर होने से पहले पता चल जाता है कि किसकी स्मेल है। तो वो है, वो वर्क क्यों हमें हेल्प करता है? वो है नोज। नोज से पता चल जाता है, स्मेल आ जाती है हमें, तो वो एक केक की स्मेल से हमें पता चल जाता है कि मम्मी ने खाने में आज केक बनाई है। तो उसका आंसर क्या है? नोज। आई सेंस द स्मेल ऑफ द फ्रेशली बेक्ड केक विथ माय नोज। तो तुम्हें इसी तरह से तुम्हें बताना है, ये और रीड भी कर देना है। अभी ये कुछ टर्म्स से होते हैं। एक्सटर्नल पार्ट्स तो किसे कहते हैं? द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच कैन बी सीन, हम जिसे देख सकते हैं, ये तो डायरेक्टली उसे कहते हैं एक्सटर्नल पार्ट। और इंटरनल पार्ट, द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी व्हिच आर इनसाइड आवर बॉडी, हमारी बॉडी के अंदर है, जो हम देख सकते हैं नहीं है। फॉर एग्जाम्पल तुम यहाँ खड़े हो और देखो तुम्हारी राइट पैंट दिखती है, फुट पैंट दिखती है, नहीं दिखती है, तो वो क्या है? हमारी इंटरनल पार्ट है। बोन्स, द हार्ड पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट प्रोवाइड अ शेप, जो हमारी बॉडी का पूरा शेप है, वो पूरा शेप किसके जरिए है? तो बोन्स के जरिए है। तो बोन्स के जरिए, बोन्स नहीं होते तो हम खड़े नहीं होते, हम ऐसे हो जाते पूरी तरह से, तो वो बोन्स है। मसल्स, इंटरनल पार्ट ऑफ आवर बॉडी दैट हेल्प अस टू मूव, हमारी बॉडी जो इंटरनल पार्ट है उसमें जो मसल्स है वो पूरे सभी पार्ट को ऐसे उंगलियों की तरह घुमाने के लिए, हैंड्स को ऐसे घुमाने के लिए, गर्दन को ऐसे घुमाने के लिए, आगे पीछे करने के लिए हेड को, वो कौन हेल्प करता है? मसल्स हेल्प करती है। हमें इतना तो पता होना चाहिए कि मसल्स के बारे में एक ऐसा कहा गया है कि हम जब एक स्टेप चलते से, कितना पैर यहाँ से उठाकर यहाँ रखते हैं, सिर्फ इतना ही चलते हैं, तो 1 स्टेप चला तो तब 200 मसल्स एक साथ मूवमेंट कर जाती है। तो हम कितना चलते हैं तो कितनी मसल्स मूवमेंट होगी हमारी बॉडी में। हम स्टिक करते तभी भी, यहाँ लिप्स में भी, और कहते हैं ना जो टीथ का जो पार्ट है उसके अंदर भी जो मसल्स है वो उसके अंदर हेल्प करती है पूरी तरह से। तो इसी तरह से हमें पूरा लेसन पूरी टेक्स्ट बुक में से रीड करना है और ध्यान से उसके एक्सरसाइज फिलअप करते रहेंगे। थैंक यू।